research publication, because I can see, as I had mentioned you, I can see my old friends here, Ravindra Shukla, Devangan, and all those people. They have some very nice publication to their credit. So really, it's not really worthwhile to tell them the trick of trade of how to write a research paper. But yes, I will, based on my very personal experience, I can at least let you how to really beautify your paper. And it is all about presentability, increasing the visibility of your paper. So let me start my presentation, and please let me know if you can see the slide and if you can see the movement of cursor. Okay, here we go. So please let me know if you all can see the slide and movement of cursor. No, sir. A slide is visible? No, sir. No, sir. Yes, sir. Now see. No. Now it is visible. Yes. Okay, Yes. very Yes. well, It is very visible, well. sir. Okay, that's very nice. So let's start with the presentation, and you can see the movement of cursor as well. Yes, Okay, sir. so okay, let's move on to my first slide. So as I told you, I can see a lot of you all are faculty somewhere, serving in the capacity of faculty, and of course guiding PhD students. So you all must have undergone the rigor of writing a research paper, right? So that is the reason why I had taken the ambit. I had broadened the ambit, and I had broadened the ambit and included other components of research publication as well, where you can which all actually entitle you for API score, which is the main outcome of writing a research paper, in addition to making your work visible across the globe. So as we see, we have a different components of research publication. It is research paper or article, what you say. This is followed by review articles, then perspective, short notes, reports, case reports, book reviews. Then there's a separate category of books and book chapters. Then there's another category that is conference papers or conference proceedings. The good part is each and every part of this research publication will entitle you API score. So each and every component is important. So the first question, first very pertinent question that comes to the mind actually is what actually decides when you are ready with your manuscript, then what actually goes into your mind and what actually makes you decide to go for a particular journal. So for me and most importantly for everyone, I guess the first thing that comes into the mind is the impact factor, which I do believe is highly misleading. So usually when you do your research, you are young and so driven by over enthusiasm, you actually bump into a journal, which is usually of high impact factor, but that has a very high stringency factor, and so the rate of rejection is very high. That is where your supervisor comes into the picture and his experience comes into the picture, and he actually molds you as to which journal to choose and which journal to reject. Now, as I had said, impact factor is highly misleading. Why it is highly misleading? I can give you just one example of a journal from American Chemical Society, Journal of Biological Chemistry. JBC has an impact factor around 4 or 5. I have one of my paper in JBC. But the thing is, there are many more journals in American Chemical Society that have impact factor 3 times, even 3 times or sometimes in 4 times of JBC. But JBC, the kind of visibility and the kind of privilege status JBC provides you, once you have a paper in JBC, you had really made a place for yourself. Your citation will enhance, will skyrocket like anything. Your visibility of your work will go like anything. And that cannot be said about the paper in the impact factor of the same society journal, which has a lesser visibility. So I believe impact factor is kind of misleading. So and next factor, I am coming to the next factor or the next parameter, which is again very important in deciding, is indexing. Let me tell you, for me, if I have to choose a journal, then I will rather choose a journal having indexing in a nice, databases like PubMed. If a journal is indexed in a PubMed, then low impact factor, or even let me tell you, no impact factor doesn't really make much of difference if it is indexed in, if it is indexed in
PubMed. So the thing is, once your journal is indexed in PubMed, then it will have a very high visibility and very high citation score. And that is the sole purpose of disseminating the work of science across different, different groups of people or different groups of, scientists, which is the ultimate aim. Third parameter I had deliberately chosen as open access. Open access can be, some people might have a good fund and they have this false notion that open access journals, since they have they have this publication charge, they have this article processing fee. So usually the process of reviewing is not that stringent, which may be correct, which may not be correct, but it varies from journal to journal. We have some very nicest possible journal in open access category, like PLOS Biology and Scientific Report, and so are others. So the open access journal, you think of, if you have this ability, if you have this financial ability to pay for the publication charge, then the process of reviewing is relatively or comparatively less stringent as compared to the unpaid journals. Second thing about open access journal is, it is not always that you have to pay for the article processing fee or APC, which we say. It is not always true, because when you go for the open access journals, basically you have three categories in open access journals. One is of low income group country, and one of high income group country, and yes, of course, other is middle income group country. So based on your nativity and location and the sort of country you are in, the article processing fee may be reduced or maybe discounted. For example, the low income group country, the article processing fee is completely waived off. This is one thing. Second thing is, you can write to editor for the waiver as well, and he can consider the waiver. He can offer you some discount based on the merit of your application, and he can grant you the waiver also. But nothing of this sort can guarantee your submission to final acceptance. Another factor that I had taken is stringency of review process. And believe me, this is a very important factor, because a research scholar may not be, a PhD student may not be knowing this, may not be perceiving this, but a supervisor, based on his experience of 10 years, 20 years, or 30 years, he can tell you very clearly that a particular journal is not really worthwhile, because it entails a lot of wastage of time, and the end result is most of the time is negative, maybe because of the inherent bias and maybe because of the n number of problems. So sometimes, and most of the times, it is the stringency of peer review process that actually deters you from submitting into a particular journal. And this actually takes into account another factor, which we say the rate of rejection. Right. So these are the factors. Then the thing is, say if you are working in disease biology, and if you are working in a particular field, then you know what are the particular journals. But what you know are usually the list of some very famous journals. And again, they have a stringency, highly stringent peer review process, and rate of rejection is very high. Then what to do? There are n number of journals. So how to really catalog or zeroed in on? Hello. Yes. Yes. Hello. Sir, you are giving us a very important information. So could you please speak something in Hindi, so that Hindi understanding people can understand the things? Oh yes, why not? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. Thank you. Okay, yeah. So अच्छा, अब आप किसी जर्नल को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, कि क्योंकि एक पर्टिकुलर फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी और सारे जर्नल्स का अगर आप टोटल मिलाएंगे, तो आपको कम से कम 100 से 200 या उससे भी ज्यादा जर्नल मिल पाएंगे. और ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है जर्नल्स को सॉर्ट आउट करना. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जीरो इन ऑन a very say some 4 to 5 journals. So what to do? करना क्या चाहिए? ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपके पास एक highly selected but highly relevant journals की एक लिस्ट हो. तो एटलीस्ट एल्सेवियर के पास ये एक तरीका है. आप एल्सेवियर में, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा. There is a thing called a journal finder.
काफी लोगों को इसमें पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। आप जब एल्सेवियर की जर्नल पेज पर जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक गाइड फॉर ऑथर मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको फिर ऑथर इंस्ट्रक्शंस और यूजफुल लिंक्स मिलेंगे। आप इस जर्नल फाइंडर पर आप क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप जर्नल फाइंडर पर क्लिक करेंगे आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार है। आपको क्या करना है, आपको एक पेज तैयार मिलेगा। इस पेज पर पेपर टाइटल होगा, देयर विल बी अ पेपर टाइटल, यू हैव टू एंटर द पेपर टाइटल, देन यू हैव टू सबमिट योर एब्स्ट्रैक्ट हियर, देन सम वेरी रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड फील्ड ऑफ रिसर्च, and then you have to say click, and you will be transported to a page like this. Suppose my field is nanobiosensing. I would like to take a short break here and to ask the participants if Hindi is okay with everyone or it is bilingual, because English is an issue, then Hindi might be an issue. Because I was told that people are from Northeast and South India also. So Hindi is okay? Yeah, sir, I'm from Northeast and problem in Hindi, please. English. Okay, fine. Acha, both. Okay, fine. Thank you. Mix. Okay, fine. Thank you. So, yes. So after that, you will be transported to this particular page. Say I had my manuscript ready in nanobiosensors. And what I did, I inserted a title, then I inserted keywords and then abstract. And then you will be provided a list of some 50 journals, and see how important this list is. इस लिस्ट में आपके पास सम 50 रेलिवेंट, हाईली रेलिवेंट जर्नल्स की लिस्ट आई। मैंने सिर्फ 3 दिखाए हैं। एंड नाउ यू कैन सी, ये पहला जर्नल है कार्बन। देयर इज अ कार्बन, देन यू कैन सी हियर द इंपैक्ट फैक्टर इज गिवन, acceptance rate or the rejection rate is also given. So and the time of publication, because now these days everything is time bound, सारी चीजें time bound हैं, आपको within time सारी चीजें दिखानी होती हैं। So इसलिए ये एक बहुत important criteria है। So आपको किसी भी जर्नल को select करते हुए सिर्फ एक impact factor चाहिए होता है, acceptance rate आपको चाहिए होता है और time of publications चाहिए होता है। So now you can see the first journal has this very good impact factor. And it has the acceptance rate of 20%, which is very low. Then there is a trends in analytical chemistry. It is impact factor of 8, and acceptance rate is very good. It is 71%, and 5 weeks to 7 weeks of publication time. Then there is a journal called as Biosensors and Bioelectronics. Impact factor is very good, 9.5, and acceptance rate is very low, 19%. So बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हमें बेसिकली किस जर्नल पे जाना है और अपना कीमती समय बचाना है। नाउ मैं आपको बता रहा था कि एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग क्यों जरूरी है। अब आप जानते हो, आप सभी यूजीसी केयर लिस्ट के बारे में भी जानते हो। सो आपको जो भी एपीआई स्कोर मिलेगा वो इस बेसिस पर मिलेगा कि आपके जो पेपर्स जिन जर्नल्स में हैं उनकी इंडेक्सिंग या तो स्कोपस में होनी चाहिए या तो वेब ऑफ साइंस में होनी चाहिए, और अगर वो पबमेड में है तो ऑटोमेटिकली वो इन दोनों में होगी ही होगी। सो इसलिए मैंने कहा कि अगर पबमेड में देयर इज इंडेक्सिंग, सो इट विल इनवेरिएबली fall in these two category as well, and then you will be entitled for API score. और ये एक कुछ अलग databases हैं इंडेक्सिंग की, बट ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। Now, कुछ अलग और भी फैक्टर्स हैं, जैसे एथिक्स इन पब्लिशिंग। एथिक्स इन पब्लिशिंग में वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे आप ड्यू रिकॉग्निशन दे रहे हैं, प्लेगरिज्म का इशू है, और ये सारे मैं आपको एग्जांपल्स के तरीके से बताता रहूंगा इन द टाइम टू कम। सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और आज ऑलमोस्ट सारे जर्नल्स आपसे कहते हैं कि आप मैन्युस्क्रिप्ट में भी एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंस के बीच में डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डालो, और ऑनलाइन सबमिशन के समय में इसे अलग से आप पेज में आप इसे अलग से इसकी एंट्री करो। सो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हियर इज नॉट कॉन्फ्रंटेशन. It can be confrontation as well. Suppose there can be a one belligerent person who claims that ये जो पेपर था इसमें मुझे ड्यू रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, मैंने बराबर काम किया था बट मुझे ड्यू ऑथरशिप नहीं दी गई।
So that is actually a confrontation, a conflict. But conflict जो है दूसरे टर्म्स में भी हो सकती है। अगर स्टेक्स, कॉमन स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, फंडिंग सोर्सेज इन्वॉल्व हैं, पेटेंट्स इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताता हूं ये किस तरीके से होगा, आगे एग्जांपल्स आते जाएंगे और मैं आपको बताते जाऊंगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी वो हर सिचुएशन हो सकती है जहां पर कि जर्नल को ऐसा लगता है कि आपके किसी के साथ रिलेशन एक अनड्यू रीजन बन सकते हैं आपके पेपर के पब्लिकेशन या रिजेक्शन के। वो आपका फंडिंग सोर्स भी हो सकता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑथर कंट्रीब्यूशन, पहले ये कुछ जर्नल्स करते थे, अब ये सारे जर्नल्स करते हैं। आपको ये डेफिनेटली ऑब्जेक्टिवली बताना होगा कि ऑथर्स के कंट्रीब्यूशन क्या है और उसकी बेसिस पर आप उन्हें कौन सी ऑथरशिप दे रहे हो। और ऑनरेरी ऑथरशिप जिसका इंडिया में बहुत ज्यादा चलन है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो आपको ये डेफिनेटली बताना होगा। आप किसी को ओबलाइज करने के लिए ऑथरशिप दे रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्स ने क्या किया है, वाई ने क्या किया है, जेड ने क्या किया है, सो दैट उस पर्सन को हम ऑथरशिप में डाल सकें। चेंज टू ऑथरशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट अब ये प्रोविजन भी है। यूजली पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है कि आप एक्सेप्टेंस से पहले ऑथरशिप चेंज भी कर सकते हैं विद ड्यू रीजन। नाउ यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है रोल ऑफ फंडिंग सोर्स में। रोल ऑफ फंडिंग सोर्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अब आप इमेजिन करिए कि आपने डीएसटी या डीबीटी से फंड किया है, वहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसने आपकी फंडिंग को फैसिलिटेट किया है और अब वो आपसे बदले में बोलेगा कि साहब आप मुझे एक इसमें ऑथरशिप दे देना, इस फंडिंग से जितने भी पेपर आएंगे उसमें आप मुझे ऑथरशिप देना। तो ये एक अनड्यू अनएथिकल प्रैक्टिस हुई। आपने पेटेंट की अप्लाई किया हुआ है और जो पेटेंट ऑफिसर है उसका कुछ इंटरेस्ट है या उसके किसी परिचित का कोई इंटरेस्ट है और वो बोले कि आप एक्स को इसमें ऑथरशिप दो। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे जहां पर भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, फॉरगेट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, अगर कहीं पर भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और उससे कुछ माल प्रैक्टिस की गुंजाइश है या फिर undue advantage की गुंजाइश है, so that comes under the conflict of interest. So role of funding source आपको ये बहुत जरूर बताना होता है with the grant number और सारी चीजें मैन्युस्क्रिप्ट में भी और जब आप सबमिट करते हैं ऑनलाइन वहां पर भी। ओपन एक्सेस ये मैं बता चुका हूँ। सब्सक्रिप्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कुछ सोसाइटीज हैं, जैसे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ऐसी बहुत सारी हैं सोसाइटीज हैं। तो वो ओपन एक्सेस के केसेस में क्या करते हैं कि वो आपको कहते हैं कि आप जो आर्टिकल प्रोसेसिंग फी दोगे वो सिर्फ जर्नल वो सिर्फ आपके पेपर के ही काम नहीं आएगी, बल्कि वो आपको मेंबरशिप भी देगी, उस पर्टिकुलर सोसाइटी की मेंबरशिप भी देगी 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। और उस मेंबरशिप के अपने फायदे होते हैं, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो ओपन एक्सेस कई बार कुछ सोसाइटीज मर्ज कर लेती हैं कुछ और फायदे देने के लिए। ये जो अगला क्रम है रेफरीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरीज के लिए अब कंडीशंस आ गई हैं। रेफरीज के केस में अब क्या होता है कि यूजुअली आप रेफरीज का नाम आपको ऑनलाइन सबमिशन के वक्त तो देना ही पड़ता है, प्लस आप उन्हें कवर लेटर में भी दे सकते हो। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने आपको कहा कि मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बता सकता जो आप नहीं जानते हैं। आप ऑलरेडी फैकल्टीज हैं और आप ऑलरेडी पीएचडी स्टूडेंट गाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो कुछ फाइनल एस्पेक्ट्स जरूर बताऊंगा जो यूजुअली हम मिस करते हैं और इससे हमारे पेपर की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो रेफरीज आप इन्हें कवर लेटर में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आप ऑनलाइन सिस्टम में जाते हैं तो ऑनलाइन सिस्टम में जब आप सबमिट करते हैं तो आपसे अब कहा जाता है कि आप हमें प्रीफर्ड रेफरीज का भी नाम बताओ और नॉन प्रीफर्ड रेफरीज का भी नाम बताओ। नाउ ये नॉन प्रीफर्ड रेफरीज क्या होते हैं? प्रीफर्ड रेफरीज में तो आपको ठीक है कि आपने प्रीफर्ड रेफरीज में कहा कि साहब उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस इस फील्ड में, वो प्लांट फिजियोलॉजी के हैं या फिर वो किसी, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन साइड ले लो तो उसमें है, तो उनकी एक्सपर्टाइज है, इसलिए उनको रेफरी होना चाहिए और प्रीफर्ड है। तो नॉन प्रीफर्ड रेफरी क्या होता है या नॉन प्रीफर्ड रिव्यूअर क्या हो सकता है? यूजुअली क्या होता है कि आप जानते हैं यहाँ एकेडमिक माफियासी चलती है। हर जगह ग्रुप्स होते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को पसंद नहीं करता है। तो यूजुअली आप सभी ऐसा जानते होंगे कि ऐसा होता है कि अगर एक्स ग्रुप का पेपर जो कि वाई ग्रुप के साथ
हॉस्टाइल है या बहुत अच्छे रिलेशन में, टर्म्स में नहीं है, और अगर जर्नल ने आपका पेपर उनके पास भेज दिया रिव्यू के लिए, तो आपका पेपर तो खत्म हो गया। कुछ भी करके वो उसे बहुत बुरा रिजेक्ट करेंगे। और बिलीव मी, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ये वर्ल्ड ओवर होता है। यूएसए, यूके, यूरोप, व्हाटएवर, हर जगह ये गंदी प्रैक्टिस होती है। देयर आर एकेडमिक माफिया सिटिंग ओवर देयर, सो दे डोंट, सो वो कंट्रोल करते हैं, दे कंट्रोल कि किस तरीके के पब्लिकेशन आने चाहिए, किस तरीके के पब्लिकेशन ही पब्लिश होने चाहिए, क्योंकि इससे उनकी फंडिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये तो हो गया नॉन प्रीफर्ड। आपको ये बताना होगा कि इनके पास पेपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मुझे अनड्यू लॉस की एक्सपेक्टेशन है, संभावना है। उसके बाद बहुत सारे जर्नल्स ये कहते हैं कि रिव्यूअर सबसे पहले तो आपके इंस्टीट्यूशन से नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ जो हाई टियर जर्नल्स हैं, बहुत ही हाई टियर जर्नल्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि वो तो आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन से भी नहीं होना चाहिए। तो रिव्यूअर आपके इंस्टीट्यूशन से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। वो रिव्यूअर आपकी ओरिजिन, आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन से भी नहीं होना चाहिए, और इसके बावजूद आपको कम से कम 4-5 नाम लेने हैं। तो मुझे लगता है जब ऐसी स्ट्रिंजेंसी आती है, तो यू विल एंड अप गिविंग द नेम ऑफ न्यूट्रल रिव्यूअर्स। फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, फिर आप एक न्यूट्रल नाम सेलेक्ट करते हैं। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आपके नाम देने का कतई ये मतलब नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। अच्छा, ओके, अभी आ रही है? नाउ यू कैन हियर मी? ओके, वेरी वेरी नाइस। सो अब क्या होता है कि अब रेफरीज, अब आप जिन रेफरीज का नाम दे रहे हैं, ये कतई जरूरी नहीं है कि आपने जिन रेफरीज का नाम दिया वो मान जाएंगे। वो अपने रेफरीज भी कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। यूजुअली होता क्या है कि आपने किसी परिचित रेफरी का नाम दिया और आपने उसे बता दिया कि मैंने एक्स जर्नल में पेपर सबमिट किया है और आपके पास आपका नाम दिया है, रिव्यू के लिए आएगा तो आप देख लीजिएगा, राइट? ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए ऐसी सारे इंतजाम किए जाते हैं। देन कॉपीराइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू जिसे हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। आपने क्या किया? आपने एक पेपर पब्लिश किया, और जब यूजली बहुत सारे जर्नल्स क्या करते हैं कि आपको पहले पेपर सबमिशन से पहले ही आपको कॉपीराइट फॉर्म साइन कराते हैं, या तो फिर एक्सेप्टेंस के बाद आपसे फॉर्म साइन कराते हैं। और एक बार आपने जब फॉर्म साइन किया, तो बेसिकली आपकी जो सोर्स ऑफ स्टडी है, आपकी जो भी कंटेंट है, आपकी जो भी रिपोर्टिंग है, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैड गिवन इन दैट पर्टिकुलर पेपर, नाउ you are actually, by signing the copyright, you are actually transferring the authority from yourself to others. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आपको अपने ही पेपर का, जिसके आप प्रिंसिपल ऑथर हैं, उसी पेपर का अगर कोई कंपोनेंट रिप्रोड्यूस करना है, तो आपको लगता है कि साहब ये तो मेरा पेपर है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप अपने ही ऑथर्ड पेपर से कुछ भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आपको जर्नल से बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी, रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी, और बताना पड़ेगा कि आप जो रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं उसका कमर्शियल बेनिफिट क्या है, उसके एक्स बेनिफिट क्या है, वाई बेनिफिट क्या है। ये सारी चीजें आप जब बताएंगे, उसके बाद ही आपको कॉपीराइट ग्रांट किया जाएगा, आपको परमिशन रिप्रोडक्शन की ग्रांट की जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि फिर बाद में प्लेगरिज्म, सेल्फ प्लेगरिज्म और ऐसी बहुत सारी चीजों के दायरे में चला जाता है। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगला जो कंपोनेंट है, कवर लेटर। बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक बढ़िया कवर लेटर बेसिकली आपकी 20 या 30 पेजेस की जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, उसका रिफ्लेक्टर होता है। एक बहुत ही शानदार कवर लेटर जिसमें आप ये लिखते हैं कि आपने इस जर्नल में भेजा है, आप ये सबमिट करते हैं कि ये कहीं भी और कंसीडरेशन में नहीं है, सिर्फ आपके जर्नल में भेजा है। इंटेंट क्या है स्टडी का, एम क्या है स्टडी का, आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज की है, ये सारी चीजें। सिग्निफिकेंस क्या है, वाइडर ऑडियंस कौन हो सकते हैं, क्यों इस जर्नल के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये उस जर्नल में जहां आप सबमिट कर रहे हैं क्यों इतना जरूरी है। बिलीव मी, आपको ये सारी बातें बहुत ही एक्सप्लिसिट तरीके से मेंशन करनी होगी। वहां पर कोई भी वर्बिएज
और वर्बोसिटी नहीं चलेगी, वहां पर आपको बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा। और ये आप करते हैं, फिर उसके बाद आपको रेलेवेंट पब्लिकेशंस भी अपने बताने होंगे आपकी, और फिर उसके बाद रेफरीज का नाम भी देना होगा, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। और इन सब के बाद आपका एक कवर लेटर, एक शानदार कवर लेटर तैयार होता है, जो कि आपको ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस में सबमिट करना पड़ता है। अगला कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हाईलाइट। और बहुत सारे जर्नल्स आजकल ये हाइलाइट्स मांगते हैं कि आपने जो पेपर सबमिट किया है उसे आप 3 से 5 बुलेट पॉइंट में उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, क्या इंपॉर्टेंस है। और ये बहुत ही मुश्किल काम है, एंड बिलीव मी, इसे आप हाइलाइट्स बोलिए या स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस बोलिए, जर्नल्स मांगते हैं। और मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर जर्नल्स नहीं मांग रहे हैं, फिर भी आप उसे अदर फाइल्स के फॉर्म में जरूर सबमिट करिए, और बहुत ज्यादा समय लगाइए स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस लिखने के लिए, क्योंकि ये वो 5 पॉइंट होते हैं जो कि आपके पेपर की विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, आपके पेपर को प्रमोट करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग प्रमोशन होगा, पेपर के विजिबिलिटी और पेपर की प्रेजेंटेबिलिटी के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगर आपसे नहीं भी मांगता है, आप उसे जरूर डालो। आप एक अलग फाइल इसे अपलोड करो और अदर फाइल के फॉर्म में हाईलाइट, अदर फाइल के कैटेगरी में आप इसे ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम में डालो। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट वर्क, आप जानते हैं, अगर कोई चीज आपके पास डेटा के फॉर्म में है या पैरा के फॉर्म में है, या फिर आप उसे एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, आजकल मैक्सिमम जर्नल्स मांगते हैं कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट को मॉडल्स के फॉर्म में या फिर एनिमेशन के फॉर्म में, डॉट्स और एरो के फॉर्म में एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आप दे सकते हैं। तो होता क्या है कि आपका पूरा वर्क जो आपने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की है, वो पूरा एक विजुअल क्लैरिटी प्रोड्यूस करता है कि ये आपका वर्क है। बेसिकली पूरा 30-40 पेजेस की जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो एक सिंगल डायग्राम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और आपके पेपर का ब्यूटिफिकेशन होता है, और इसकी वजह से प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ती है, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पेपर विल बी थ्रू दैट पर्टिकुलर जर्नल। एंड ट्राई टू, एक और चीज का आप ध्यान रखिए, जितना ज्यादा आप इसमें एडिशनल सप्लीमेंट्री मटेरियल डाल सकते हैं अपने डेटा को प्रूव करने के लिए, अपने डेटा को वैलिडेट करने के लिए, और आप वो डालिए। वो आपको बिल्कुल नहीं मना करते हैं। मेन फाइल्स में रिस्ट्रिक्शंस होती है, बट एडिशनल सप्लीमेंट्री फाइल्स में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो आप जितने ज्यादा सपोर्टिंग मटेरियल्स आप डाल सकते हैं अपने डेटा को वैलिडेट करने के लिए, अपने वर्क को वैलिडेट करने के लिए, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। रेफरेंसिंग स्टाइल ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। यूजली जब आप कोई जर्नल कंसीडर करते हैं, यहां पर मैंने क्यों रखा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी जर्नल को सेलेक्ट करते हैं, तो यूजली हम लोग के समय में पहले होता था कि आपको अपने पेपर को उस जर्नल के स्टाइल फॉर्मेटिंग के हिसाब से फॉर्मेट करना पड़ता था, स्टाइल के हिसाब से फॉर्मेट करना पड़ता था। एल्जेवियर, बहुत सारे मामलों में एल्जेवियर के जर्नल्स बहुत अच्छे होते हैं। एल्जेवियर के जर्नल्स अब बहुत क्लियरली कहते हैं कि, और ऐसे बहुत सारे जर्नल्स अब हैं, नॉट ओनली एल्जेवियर्स, वो ये कहते हैं कि आप बस एक कोई यूनिफॉर्म स्टाइल ले लो, आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे जर्नल के हिसाब से फॉर्मेट करने की, आप कोई से भी स्टाइल ले लो और उसे आप भेज दो। हम आपसे जर्नल के स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग तब मांगेंगे जब आपका पेपर हमारे यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, विच इज वेरी लॉजिकल। क्योंकि फॉर्मेटिंग में अगर आप मैनुअल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं एंड नोट जैसे, बिलीव मी इट इज वेरी पेनफुल। आप सभी जानते हैं, आप सभी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो आप सभी जानते हैं ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। तो फॉर्मेटिंग में जो सबसे बड़ा चंक होता है वो रेफरेंस का होता है, इसलिए मैंने आपको डिफरेंस स्टाइल दी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने क्यों दिया है, ये आजकल मैक्सिमम जर्नल्स इस स्टाइल को प्रीफर करते हैं, और जो बहुत ही पेनफुल है। अगर आप मैनुअल फॉर्मेटिंग कर रहे हो, अगर आप एंड नोट या जोटेरो या ये सब यूज कर रहे हो, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप मैनुअल फॉर्मेट यूज कर रहे हो और आप वैंकूवर स्टाइल यूज कर रहे हैं, जो कि आजकल मैक्सिमम जर्नल मांगते हैं, तो ये बहुत ही टीडियस है। यूजली इसमें होता क्या है कि आप मेन टेक्स्ट में रेफरेंस के तौर पर जब आप ऑथर का नाम या ईयर लिखते हो, उसकी जगह आप नंबर डालते हो। नंबर में भी कई बार सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में होते हैं। प्रॉब्लम कब आती है, और फिर आप उसे रेफरेंस लिस्ट में लास्ट पेज पर उस के अकॉर्डिंग जिस ऑर्डर में वो रेफरेंसेस टेक्स्ट में आए हैं, आप उन्हें सीरियल वाइज वहां पर अरेंज करते हो। यहां तक तो ठीक है। लेकिन
दिक्कत तब आती है जब आप उन्हें जब आपको उसे एडिट करना है, पेपर को एडिट करना है या कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट निकालना है, ऐड करना है, तो जिस पर्टिकुलर जगह पर आपने पैरा निकाला या कुछ ऐड किया, उसके बाद के सारे रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं और वो नंबर्स फिर आप मैनुअल सर्च करो और उनको फिर ढूंढो, फिर आप रेफरेंस को करेक्ट करो. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज वेरी पेनफुल एंड यू कैन नॉट गारंटी दैट इट विल बी एरर फ्री. इट वोंट बी. तो ये कुछ रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं. तो जो काम आपको मैनुअल करने में कुछ घंटे लगते हैं, वो आप इन रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर से, इसके लिए आपको वर्कशॉप की जरूरत है. इन सारे सॉफ्टवेयर से आप मिनटों में कर सकते हैं, जस्ट अ माउस क्लिक अवे. ये पहले तीन बहुत ही अच्छे हैं, पर्टिकुलरली एंडनोट, मेंडली और ज़ोटेरो. ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये बाकी के रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें आपको अगर किसी पर्टिकुलर जर्नल के हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है, आप सिंपली कुछ एक पर्टिकुलर इसमें कमांड्स होते हैं, उसको फॉलो करके यू कैन जस्ट क्लिक द माउस एंड द होल मैन्युस्क्रिप्ट विल गेट फॉर्मेटेड अकॉर्डिंगली. नाउ ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? तो फॉर्मेटिंग में मैंने आपको पहले बताया कि रेफरेंस एक 80% चंक फॉर्म करता है. उसके बाद फिर मेन बॉडी टेक्स्ट होता है. एब्स्ट्रैक्ट पर मैं खासतौर पे स्ट्रेस कर रहा हूं. बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट जो कन्वेंशनल फॉर्म होता है वो यूजली एक रेगुलर रनिंग पैराग्राफ के फॉर्म में होता है, और विद वर्ड रिस्ट्रिक्शन में भी 200 से 250 इज अ वेरी गुड एब्स्ट्रैक्ट. और इसमें आप लिखते हैं कि बेसिकली बैकग्राउंड क्या है स्टडी का, 1 से 2 लाइन में. अब फिर आप लिखते हैं कि बेसिकली आपका एम क्या है, बैकग्राउंड के बाद एम क्या है, और एम के बाद आपने क्या मेथड यूज किया है, और फिर आपको रिजल्ट क्या मिले हैं, और कंक्लूजन क्या है. बेसिकली ये आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है. और ये जो आप एब्स्ट्रैक्ट देख रहे हैं, ये एक रनिंग एब्स्ट्रैक्ट है. लेकिन आजकल मैक्सिमम जर्नल्स स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं, जो आपको अगले पेज पर दिख रहा है. ये आप देखिए, ये एक स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट है. इसमें आपको 4 कंपोनेंट दिख रहे हैं. बैकग्राउंड दिख रहा है, मेथड्स दिख रहे हैं, रिजल्ट दिख रहा है, कंक्लूजन दिख रहा है. बेसिकली इसमें एक और कंपोनेंट होता है, वो होता है एम. व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, एम क्या था आपकी स्टडी का. ठीक है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट अनस्ट्रक्चर्ड नहीं रहे मोस्ट ऑफ द केसेस में. अब आपको स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट्स मांगे जाते हैं, और ये एक तरीके से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जब आप बैकग्राउंड लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ बैकग्राउंड के ही बारे में फोकस करना है, और मेथड्स लिख रहे हैं तो उस बारे में फोकस करना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए. तो इसलिए मैंने आपको ये एब्स्ट्रैक्ट की फाइल्स दिखाई. तो ये था रिसर्च पेपर. अब तक मैंने जो बात की थी वो रिसर्च पेपर की बात की थी. अब हम रिव्यू आर्टिकल पर आते हैं. रिव्यू आर्टिकल बेसिकली इसमें अगर आप रिसर्च पेपर से कंपेयर करोगे तो रिव्यू आर्टिकल में फर्क क्या होता है. रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च पेपर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन रिव्यू आर्टिकल की जो स्ट्रक्चरिंग होती है वहां पर एब्स्ट्रैक्ट फॉलोड बाय इंट्रोडक्शन एंड देन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, conclusions and future perspectives. Conclusions followed by future perspectives. ठीक है, लेकिन एक रिसर्च पेपर जो होता है उसमें आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो ये एक डिफरेंस होता है. मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कुछ और, वो ये है कि रिव्यू आर्टिकल बेसिकली 2 तरीके के हो सकते हैं. यूजली एक तो सॉलिसिटेड होता है, इनवाइटेड होता है. ठीक है, आपसे मांगा जा रहा है कि आप रिव्यू कंट्रीब्यूट करो, और दूसरा होता है अनसॉलिसिटेड. अनसॉलिसिटेड में क्या कंडीशन होती है ये मैं आपको बताऊंगा. अच्छा, एक और जो यूजली जब आप रिव्यू आर्टिकल की बात करते हैं तो इसे एक अजीब तरीके से देखा जाता है कि ये तो सब कॉपी पेस्ट है. रिव्यू तो कॉपी पेस्ट होता है और ये तो बहुत आसान है. बट लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है. और रिव्यू आर्टिकल बेसिकली एक एंटाइटलमेंट होता है कि कौन लिख सकते हैं. सभी तो लिख भी नहीं सकते हैं रिव्यू आर्टिकल. रिव्यू आर्टिकल का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो एक्सपर्टाइज है, आपकी जो चोजन एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, उसमें उस पर्टिकुलर फील्ड को आप पिछले 3 to 4 डेकेड्स में क्या डेवलपमेंट हुआ है, बेस्ड ऑन दैट फ्यूचर क्या दिख रहा है, आप वो सिचुएशन रिव्यू करते हैं. तो ये वही कर सकता है जिसने उस पर्टिकुलर फील्ड को अपनी एक्सपर्टाइज 3 to 4 डेकेड दी है, एंड ही इज अ नोन नेम इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. सो ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन राइट अ रिव्यू आर्टिकल. सो एक तो था कि इनवाइटेड रिव्यू. जब इनवाइटेड रिव्यू है फिर तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये इन्विटेशन उनके ही पास जाएगा जिनकी एक्सपर्टाइज प्रूवन है
और वैलिडेटेड है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पब्लिकेशन दे आर हैविंग, राइट, बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन दे हैड गिवन टू दैट पर्टिकुलर फील्ड। लेकिन अनसॉलिसिटेड भी होते हैं। तो अनसॉलिसिटेड जब होता है तो एक हमेशा बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैं बेसिकली आपको एथिकल प्रैक्टिस के बारे में ही थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। तो बेसिकली जब रिव्यू अनसॉलिसिटेड होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप एक कंसल्टिंग एडिटर, जिस भी जर्नल में आप भेजना चाहते हैं, आप उसके कंसल्टिंग एडिटर से मेल करें। और हर जर्नल के पास अपना एक प्रपोजल होता है, रिव्यू प्रपोजल फॉर्म होता है। मैंने ये एक फॉर्मेट आपके सामने रखा हुआ है। तो अब आप उस रिव्यू प्रपोजल फॉर्म को बहुत ही केयरफुली आप भरेंगे। टॉपिक ऑफ प्रपोज रिव्यू, प्रपोज ऑथर्स, एफिलिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, और वो सच भी है, कि एक रिव्यू आर्टिकल मैक्सिमम 3 से 5 ऑथर ही अलाउड हैं। और मुझे भी समझ में नहीं आता कि व्हाई देयर हैज टू बी मोर देन 3 to 5 ऑथर्स फॉर अ रिव्यू आर्टिकल। यूजुअली 1 is sufficient and 2 is the maximum. So ये आपको देना होता है। ऑथर्स एक्सपर्टाइज, ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर्स एक्सपर्टाइज इन रिव्यू टॉपिक। आप क्यों ये रिव्यू लिख रहे हैं? आपके पास प्रूवन एक्सपर्टाइज है। दिस यू हैव टू प्रूव बाय पुटिंग योर रीसेंट रेलेवेंट पब्लिकेशंस। देन ब्रीफ समरी, आपको ब्रीफ समरी लिखनी है, फोकस और सिग्निफिकेंस लिखना है उसका। ये बेसिकली प्रपोजल फॉर्म है रिव्यू का। और आपको ये हाईलाइट देनी है वेदर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो रिव्यू लिख रहे हैं, क्या वैसा कोई रिव्यू पिछले 3 साल में पब्लिश हुआ है, पिछले 3 से 5 साल में पब्लिश हुआ है? और अगर पब्लिश हुआ है तो आपका रिव्यू किस तरीके से अलग है, आपके रिव्यू को अलग अटेंशन क्यों मिलना चाहिए? ये 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एंटिसिपेटेड सबमिशन डेट, वेरी इजी। प्रीफर्ड हैंडलिंग एडिटर्स भी यूजली कुछ लोग मांगते हैं कि आप किस एडिटर को देना चाहोगे। यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी चॉइस ऑफ एडिटर वेग नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी, क्योंकि ये आपका डिग्री ऑफ लेवल ऑफ सीरियसनेस बताता है। देन प्लीज कमेंट ऑन द करंट इंपॉर्टेंस ऑफ द फील्ड। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर द वाइडर साइंटिफिक कम्युनिटी? आप जो लिख रहे हो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, और आपका आर्टिकल किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा अपील कर सकता है? और ये साइंस और ह्यूमैनिटीज दोनों में ही बराबर से लागू होती है। प्लीज कमेंट ऑन एनी अदर रिव्यूज। ये जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, बेसिकली वही है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर एक दिखा रहा था कि बेसिकली रिव्यू आपका एब्स्ट्रैक्ट से शुरू होता है, और आप ये देखिए किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपके हेड्स और सब हेड्स यहाँ पर, ये आपको जरूर देना होता है। और ये आपको रिव्यू प्रपोजल फॉर्म में भी देना होता है कि आपके डिफरेंट जो इंडेक्स हैं, आपके रिव्यू का, आपके आर्टिकल का जो इंडेक्स है, वो आप दो डिफरेंट हेड्स और सब हेड्स के फॉर्म में। इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। इसके बाद आता है पर्सपेक्टिव। हमने रिसर्च पेपर देखा, हमने रिव्यू आर्टिकल देखा, फिर पर्सपेक्टिव आता है। पर्सपेक्टिव की कैटेगरी और भी ज्यादा हाई है। पर्सपेक्टिव तो किसी भी हालत में सॉलिसिटेड या इनवाइटेड ही होता है, और अगेन ये सिर्फ और सिर्फ इनवाइटेड होता है स्ट्रिक्टली। और ये वही लिख सकते हैं जिन्होंने सचमुच इस फील्ड में लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन दिया है, बेंचमार्क डिस्कवरीज की है, और जिनकी बदौलत ये फील्ड है। तो ये पर्सपेक्टिव तो कोई लिखने की सोच भी नहीं सकता, सोचना भी नहीं चाहिए। ये खुद आपके पास बड़े जर्नल्स, जो बहुत ही हाई टियर्स जर्नल्स हैं, वो आपको इनवाइट करेंगे, तब इनवाइट करेंगे जब आपका वो लेवल हो जाएगा कि आप उस फील्ड के बेसिकली पिलर स्टोन्स हो जाएं। तो ये पर्सपेक्टिव होगा। पर्सपेक्टिव का स्ट्रक्चर, बेसिकली मेरा मतलब था आपको दिखाने का, स्ट्रक्चर उसका फिर से वही होता है। और आप देखिए इन सब में डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जरूर होता है। तो इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, और फिर उसके बाद आप एक रनिंग मोड में हेड्स और सब हेड्स के फॉर्म में आप ये पर्सपेक्टिव्स लिखते हो। तो बेसिकली रिव्यू और पर्सपेक्टिव्स एक ही जैसे हैं, बस फर्क ये है कि रिव्यू सॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड दोनों हो सकता है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इनवाइटेड होता है, सॉलिसिटेड होता है। आपने देखा रेफरेंसेस भी हैं इसमें। देन शॉर्ट नोट्स। बेसिकली शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स भी ये एग्जैक्टली रिसर्च पेपर होते हैं। मैं आपको यहां पर ये जरूर बताऊंगा, ये लैब टू लैब फर्क वेरी करता है, और सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर वेरी करता है। मेरे बीएचयू में जो सुपरवाइजर थे वो वर्ल्ड के टॉप 10 जेनेटिसिस्ट में थे। उनका ये कहना था कि प्रणवीर, कुछ भी हो, डेटा अगर तुम्हारे पास है, दैट शुड बी पब्लिश्ड।
छोटे जर्नल में ही सही, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी पब्लिशेबल है तो दैट शुड नॉट लाई वेस्ट विद यू, तुम्हें उसे पब्लिश करना चाहिए, ठीक है, छोटे जर्नल में डालो। अच्छा, उसके ठीक विपरीत जब मैं पोस्ट डॉक के लिए गया तो जो मेरे सुपरवाइजर थे प्रोफेसर वरदराजन, उनका ये था कि वो एक पेपर में टन्स ऑफ डेटा जाना चाहिए, जब तक टन्स ऑफ डेटा नहीं होंगे तब तक एक वर्दी पेपर तैयार नहीं होगा। तो जबकि मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर थे छोटे डेटा से छोटे पेपर पब्लिश करो बट डू पब्लिश। और मुझे लगता है आज यूजीसी के गाइडलाइंस हैं कि आपके थीसिस सबमिशन से पहले 2 पेपर जरूर होने चाहिए और ऐसी बहुत सारी चीजें, उसमें ये कहीं हद तक सही है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे आते हैं पिक्चर में? शॉर्ट नोट बेसिकली रिसर्च आर्टिकल ही होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड होता है रिसर्च आर्टिकल की ही तरीके से, लेकिन वो स्ट्रक्चरिंग इसमें हेडिंग के फॉर्म में नहीं होती है। मतलब यहाँ एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, यहाँ इंट्रोडक्शन भी होता है, यहाँ मटेरियल मेथड और रिजल्ट्स और डिस्कशन कंक्लूजन भी होता है, लेकिन उसकी हेडिंग्स नहीं होती हैं। अब आप देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये एक रनिंग फॉर्मेट में चलता चला जाएगा और फिर आप देखिएगा ये खत्म भी होगा और इसमें सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस भी होगा, मटेरियल मेथड भी होगा, रिजल्ट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी हेडिंग्स नहीं होंगी। तो बेसिकली स्ट्रक्चरिंग विजिबल नहीं होगी। तो आपने देखा एक्नॉलेजमेंट भी है और फिर रेफरेंस है, तो ये शॉर्ट नोट्स हैं। ये भी आपको एपीआई स्कोर देते हैं। फिर केस रिपोर्ट। केस रिपोर्ट एक अगली कैटेगरी है जो कि यूजुअली मेडिसिन में ज्यादा होती है, मेडिसिन फील्ड में ज्यादा होती है और सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स जैसी फील्ड हुई, इन सब में भी ज्यादा होती है, जहां आप एक पर्टिकुलर कोई केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आप जहां पर एक स्टडी करते हैं कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दे करके एंड देन यू वांट टू हैव ऑब्जर्वेशन और फिर आप उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो बेसिकली ये या तो ह्यूमैनिटीज जैसे हुआ और फिर साइंस में मेडिसिन हुए, तो इन सब में केस स्टडी होती हैं। सो यहाँ भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा था कि बेसिकली यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन होता है और यहाँ केस रिपोर्ट्स होते हैं, आप मेथोडोलॉजी वगैरह भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और रिजल्ट्स भी होते हैं और डिस्कशन भी होते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी आता है। देखिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया है, किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी को, टू कीप द कंट्रोवर्सीज एट बे, दिस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। रेफरेंसेस, बुक रिव्यूज भी हैं, बुक रिव्यूज भी आपके अदर पब्लिकेशंस में आते हैं और बुक रिव्यूज भी आप लिख सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर, कुछ जर्नल्स इनवाइट करते हैं, सारे जर्नल्स नहीं बट कुछ जर्नल्स इनवाइट करते हैं और आपको इसके लिए तरीका ये होता है कि आप उन पर्टिकुलर जर्नल्स में जो कि बुक्स भी पब्लिश करते हैं, जैसे स्प्रिंगर के कुछ जर्नल्स हैं या फिर ऑक्सफोर्ड के हैं, कैम्ब्रिज के हैं, तो वो बुक्स भी पब्लिश करते हैं, तो आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन फ्री है और वो आपके मेल बॉक्स में डेफिनेट पीरियड पर बुक्स के टाइटल्स आते रहेंगे, उनकी समरी आती रहेगी और आपको मौका मिलेगा कि आप उन पर रिव्यू लिख सकते हैं, उन पर एक बुक रिव्यू लिख सकते हैं जिनमें आप बुक के फाइनल एस्पेक्ट्स बताते हैं, उनके मेरिट डिमेरिट तो आप नहीं बताते हैं, यूजुअली आप उनके फाइनल एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं और इस तरीके से बुक रिव्यू आपका कंप्लीट होता है और ये भी एपीआई स्कोर में एलिजिबल होते हैं। अब जो सेकंड लास्ट कंपोनेंट है वो है बुक और बुक चैप्टर, ये आपके अदर पब्लिकेशन में आते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, बुक आपकी मोनोग्राफ भी हो सकती है या कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स भी हो सकते हैं, एडिटेड बुक्स भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये होता है कि आप बुक को सीधे रिसर्च पेपर की तरह से सबमिट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आप बुक को सीधे सबमिट कर दें। आपको बुक का प्रपोजल एक बार कंसल्टिंग एडिटर से डिस्कस तो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। सो फिलहाल तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है कि आप सबसे पहले तो पब्लिशर्स को ढूंढिए कि कौन सा पब्लिशर आपकी बुक को पब्लिश कर सकता है और उसके बाद फिर आप उनके कंसल्टिंग एडिटर को एक ब्रीफ मेल डालिए कि आपके पास एक ड्राफ्ट तैयार है या आप एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट पर वर्क कर रहे हैं और उसका टाइटल ये है और वो आपके साथ पब्लिश करना चाहते हैं। तो फिर वो अगर उन्हें आइडिया पसंद आता है, टाइटल पसंद आता है, तो फिर आपको रेकमेंड करेंगे। हो सकता है वहीं पर रिजेक्ट कर दें,
ऐसा भी होता है, लेकिन वो आपको रेकमेंड करेंगे कि आप हमारे जर्नल के बुक प्रपोजल फॉर्म को, और वो खुद ही अटैच करके आपको भेज देंगे, आप इसे डिटेल भरो। और ये एक बहुत ही डिटेल फॉर्म होता है, बुक प्रपोजल फॉर्म इज अ वेरी डिटेल फॉर्म, ये होता है। और जब आप ये भर देते हैं और ये भी आपका एक्सेप्ट हो जाता है, फिर अगला स्टेप आता है, आप उन्हें चैप्टर्स भेजते हैं और उसके साथ ये फाइल्स के फॉर्म में जाते हैं। प्रीफेस आप उन्हें भेजते हैं, डेडिकेशन अगर आप किसी को डेडिकेट करते हैं बुक तो वो भी आप भेजते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स भेजते हैं, बुक का डिस्क्रिप्शन, ऑथर क्वेश्चनर, ये बेसिकली टोटल प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए होता है, आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन। कॉपीराइट ट्रांसफर फॉर्म, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, परमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म एंड इंडेक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुक प्रपोजल फॉर्म। ये मेरे पास चूंकि मेरा पब्लिकेशन इसमें स्प्रिंगर की बुक में भी, स्प्रिंगर नीदरलैंड में है, तो इसलिए मैंने एक स्प्रिंगर का फॉर्म आपके पास रखा हुआ है, एक यूरोप से और एक यूएसए से। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो ये एक बुक प्रपोजल फॉर्म है स्प्रिंगर से। अब आप देखिए, पहला ही यहां पर जो पहला ही आपको जवाब देना है वो रिस्पॉन्सिबल एडिटर, कौन आपकी बुक को हैंडल करेगा। एंड बिलीव मी, दिस डिपेंड्स अ लॉट। आपकी बुक्स रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, इट डिपेंड्स कि आपका जो रिस्पॉन्सिबल एडिटर है वो कितना स्ट्रांगली आपके केस को फाइट कर सकता है अमंग द बोर्ड। क्योंकि एक पूरा बोर्ड मीटिंग होती है और उस बोर्ड मीटिंग में ये फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि, और उसमें ढेर सारे एडिटर्स बैठते हैं और फिर उसमें ये फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि फाइनली इस टाइटल को एक्सेप्ट करते हैं, इस टाइटल को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है कि आपके एडिटर की का कद भी बड़ा होना चाहिए और उसकी जो बार्गेनिंग कैपेबिलिटी है वो भी बड़ी होनी चाहिए। तो एक रिस्पॉन्सिबल एडिटर सेलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल टेंटेटिव होता है, ये फाइनल नहीं होता है। आपने कुछ टाइटल किया, बाद में चेंज भी हो सकता है। ऑथर्स, एडिशनल एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें तो आप जानते हैं। बुक इंफॉर्मेशन, अब यहां से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शुरू होती हैं। टाइप ऑफ वर्क, बेसिकली ये है क्या, मोनोग्राफ है, एडिटेड बुक है, या कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स हैं, ऐसे कुछ। ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क, ये आपको एक एफिडेविट सॉर्ट ऑफ होता है, आपको देना पड़ेगा। लैंग्वेज क्या है बुक की। डिसिप्लिन, ये किस मेन डिसिप्लिन में आती है, ब्रॉडर डिसिप्लिन क्या है, सब डिसिप्लिन क्या है। कंटेंट लेवल क्या है। कंटेंट लेवल का मतलब ये हुआ कि ये किस ऑडियंस को एड्रेस करेगी आपकी बुक। अगर हम आपकी बुक पब्लिश करते हैं तो ये किस तरीके के ऑडियंस को ये बुक एड्रेस करने वाली है, किस लेवल को एड्रेस करने वाली है, पीजी लेवल, यूजी लेवल, रिसर्च लेवल। और एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, कब तक आप सबमिट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पेजेस क्या है, इसमें टोटल पेजेस कितने हैं, टेबल्स कितने होंगे, इलस्ट्रेशंस, फिगर्स कितनी होंगी, वो फिगर्स ब्लैक एंड व्हाइट होंगी, कलर्ड होंगी। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होगा, कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल भी आप बुक के साथ, आजकल सीडीज वगैरह भी आती हैं, ऑनलाइन फाइल्स भी आती हैं, तो ये भी आपको बताना होगा कि क्या आप ऐसा कुछ भी देना चाहते हैं। ये टेक्स्ट बुक है या रेफरेंस बुक है। अगर टेक्स्ट बुक है तो आपको बताना होगा कि किस लेवल के ऑडियंस आपके होंगे। जैसा आपने पीछे देखा था, यूजी लेवल के ऑडियंस होंगे आपके, रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, कौन होंगे, किस तरीके के ऑडियंस आपके होंगे। ठीक है, और अगर हैं तो उनमें टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट कितना होगा। क्योंकि आप जब कोई बुक लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर आपके माइंड में होता है कि आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन होंगे और उनका नंबर कहां कहां आप इसे सर्कुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ, एक टेंटेटिव एनरोलमेंट आपको देना होगा, कोई बहुत स्पेसिफिक नंबर आप नहीं दे सकते। मेन टेक्स्ट, सप्लीमेंट्री रीडिंग और पॉसिबल कॉन्टेक्ट्स टीचिंग द कोर्स। आपको ये भी बताना होगा कि ये जो बुक है इसको अगर यूजी या पीजी लेवल पर इसे पढ़ाया जाता है तो वो कौन से टीचर्स हैं, कोर्स इंस्ट्रक्टर्स हैं जो इस बुक को देखेंगे। देन अगला होगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वर्क, 1000 वर्ड्स। ये जैसा आपने देखा हाइलाइट्स हमने देखा था रिसर्च पेपर्स में, वैसे ही यहाँ पर 3 यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। 3 यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आप इमेजिन कर सकते हैं, इट हैज टू बी रियली वेरी वेरी क्रूशियल। ये सिर्फ 3 पॉइंट्स में आपको 200 300 या 400 500 पेजेस की बुक के सिर्फ 3 यूनिक सेलिंग पॉइंट्स में आपको बताना है कि इसकी यूएसपी क्या है। 5 कीवर्ड्स, आपको वो पूरे 500 पेजेस की बुक को 5 रेलिवेंट कीवर्ड्स में समराइज करना है। कॉम्पिटिटिव लिटरेचर, ये फिर से वही चीज है जो आपने रिव्यू में देखा कि जो बुक जो आपने टाइटल दिया है उसका कॉम्पिटिटिव लिटरेचर है, अगर अवेलेबल है तो कितना है,
और आपकी बुक किस तरह से डिफरेंट है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, इन सब के बावजूद भी अगर ये तो एक स्टैंडर्ड बुक प्रपोजल फॉर्म हो गया, इसके बाद भी एडिटर को लगता है कि नहीं, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, तो वो आपसे कहेगा कि नहीं साहब, मुझे तो आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दो, ये सफिशिएंट नहीं है। तो ये आप भेजते हैं, फिर इसका रिव्यू होता है ऑलमोस्ट महीने से 2 महीने, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस पब्लिशर को भेजा है। जैसे स्प्रिंगर बहुत समय लेता है, स्प्रिंगर की पूरी प्रोसेस 2 से 2.5 साल में कंप्लीट होती है, एटलीस्ट मेरा ये एक्सपीरियंस है। ये दूसरा पब्लिकेशन फॉर्म भी मैंने आपको दिया है ताकि एक कंट्रास्ट आप फील कर सकें। ये पब्लिकेशन आइडिया फॉर्म वही चीज है, और ये नोवा यूएसए से है। ये थोड़ा सा क्विक है, नोवा इज पर्टिकुलरली क्विक, but Springer is very specific, and the process of publication is extremely tedious. अब ये आपसे पहला ही जो सवाल पूछते हैं वो ये कि बुक हार्ड कवर होगी या सॉफ्ट कवर होगी। सॉफ्ट कवर का मतलब ये होता है कि अगर आपकी बुक में 40,000 से 50,000 शब्द हैं आपकी बुक में, तो सॉफ्ट बाइंडिंग होगी। और अगर 50,000 की कैपेसिटी को बुक ने, वर्ड्स की के नंबर्स को क्रॉस कर लिया है बुक ने, तो वो हार्ड कवर बुक होगी। फिर फुल एड्रेस, ऑथर का एड्रेस, सारे और पोजीशंस वगैरह भी पूछते हैं। वर्ड्स, पेजेस, इलस्ट्रेशंस कितने होंगे, कलर्ड इलस्ट्रेशन क्या जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है साइंस में पर्टिकुलरली आपको और ये ह्यूमैनिटीज में भी होता होगा कि बिना कलर के आप विजुअल क्लैरिटी नहीं होती है, और आपको कलर देना ही होता है, तो आपको बताना होगा। और ये चार्जेबल होता है, ये आपको जानना पड़ेगा, ये चार्जेबल होता है। आप जर्नल में करेंगे तो भी, और अगर आप बुक्स में करेंगे तो भी। अगर आप कलर्ड इलस्ट्रेशंस के लिए कह रहे हैं तो पर फिगर आपसे चार्ज लिया ही जाएगा, भले ही वो अनपेड जर्नल हो। तब आप सबमिट कर दोगे, जो कि सेम है। और सब्जेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड पब्लिकेशन, और एकेडमिक लेवल क्या है, कंटेंट लेवल जो अभी हमने देखा था, 200 से 500 वर्ड में आप उसे डिस्क्राइब करिए। और ये जो आप डिस्क्रिप्शन देंगे वो पब्लिशर अपने वेब पेज पर डालता है फॉर प्रमोशन। आप जो भी 200 से 500 वर्ड का डिस्क्रिप्शन देंगे इस किताब का, अपनी प्रपोज्ड बुक का, वो पब्लिशर के वेब पेज पर सीधे जाकर के पोस्ट हो जाता है, और वो रिफ्लेक्ट करता है, सो दैट पीपल मे गेट इंटरेस्टेड, क्योंकि लोग टाइटल सर्च करते रहते हैं। प्लीज गिव डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑडियंस, अगेन वही चीज है कि टारगेटेड ऑडियंस कौन है, सब्जेक्ट एरियाज क्या है, कॉम्पिटिटिव पब्लिकेशंस कौन से हैं जो अवेलेबल हैं, और क्या एडवांटेज है आपकी पब्लिकेशन की जो औरों में नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी बुक कितना जल्दी आउट ऑफ डेट हो जाएगी? ठीक है, अगर आप कोई बुक दे रहे हैं तो ये लंबा सस्टेन करेगी, या फिर बहुत जल्दी कोई कॉम्पिटिटिव पब्लिकेशन आएगा और दिस विल बिकम रिडंडेंट, ये आउट ऑफ डेट हो जाएगी। आपके रिसेंट पब्लिकेशन, बेसिकली ये इसलिए मांगा जाता है, वहां पर आपने स्प्रिंगर में देखा मांगा नहीं गया, बट आपको देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप बायोसेंसिंग पर या किसी भी पर्टिकुलर विधा पर कोई बुक लिख रहे हो, तो आपकी एक्सपर्टाइज है या फिर आप यूं ही बुक लिख रहे हैं। तो आपको ये प्रूव तो करना पड़ेगा कि आप में वो रेलिवेंट कॉम्पिटेंस और एक्सपर्टाइज है इन टर्म्स ऑफ विच इज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ योर पब्लिकेशन। ये ऑथर क्वेश्चनर है। ये एक बार ये तब होता है जब आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो गया, आपने चैप्टर्स भी भेज दिए, या आपने एटलीस्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स भेज दिए, आप सब कुछ एक्सेप्टेड है। अब बस प्रमोशनल आपके बुक के प्रमोशंस की तैयारी की जा रही है, आपके बुक के एडवर्टीजमेंट की, मार्केटिंग की तैयारी की जा रही है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप नाम देंगे, मल्टीपल ऑथर्स का एड्रेस देंगे, एकेडमिक एफिलिएशंस, टाइटल, आपकी पोजीशन क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, ब्रीफ बायोग्राफी, आपकी ब्रीफ बायोग्राफी भी होगी 40 से 50 शब्द की, और आपकी फोटो के साथ, और नेम और एड्रेस ऑफ ऐसे लोग जो कि आपकी बुक को रिव्यू कर सकें और उन्होंने आपकी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी हो। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज जो कि आपकी बुक को मार्केट कर सकें, आपकी बुक को प्रमोट कर सकें और एडवर्टाइज कर सकें, और किस तरीके से, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन अप्रोच, और अप्रोच वो किस तरीके से करेंगे ये भी आपको देना होगा, क्योंकि अब आपकी बुक को हर तरीके से, इससे पहले कि वो टेबल पर आ जाए, आपको बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग करनी है। और टू असिस्ट विद द मार्केटिंग ऑफ योर बुक, लिस्ट और नेम ऑफ ईमेल एड्रेसेस जिनसे कांटेक्ट किया जा सकता है, जो इस टाइटल में इंटरेस्टेड हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं,
फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहां तक भी होता है कि अगर आप कोई नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो वहां पर यूजली लोग स्टॉल्स लगाते हैं, पब्लिशर्स स्टॉल्स लगाते हैं। तो क्या हम किन तरीके की कॉन्फ्रेंस में आपकी बुक का टाइटल रख सकते हैं, या आप ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो जहां पर हम ये टाइटल, आपका प्रपोज टाइटल और आपका प्रपोज वर्क रख सकते हैं, तो आप ये भी बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक है इस बुक में जो कि न्यूज वर्दी है इवेंट और डिबेट्स के लिए। अब आप देखिए, अब अगर मान लीजिए कोई अभी जो टाइम चल रहा है पूरी दुनिया में एक ही मुद्दा है और वो है कोविड का, ठीक है। तो अगर आपने डिजीज बायोलॉजी पर कोई किताब लिखी है या वायरोलॉजी पर कोई किताब लिखी है, तो आप ये इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ, मेरी बुक डिजीज से डील कर रही है, पब्लिक हेल्थ से डील कर रही है, और मेरी बुक वायरस से डील कर रही है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि डिबेटेबल हैं और न्यूज वर्दी भी हैं, जो इस वक्त करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे आपकी बुक्स को प्रमोशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बुक, रफली 5 लाइन्स। अगेन ये आपके हाइलाइट्स होते हैं। और किसके लिए बुक लिखी गई है? प्रोफेशनल पीपल, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि आपके वर्क को सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिकेट एनी एक्सपोर्ट मार्केट, क्या ऐसी कोई एक्सपोर्ट मार्केट है जहां पर आपकी बुक पब्लिश हो सकती है? एनी आइडिया फॉर फ्यूचर बुक। ये कुछ बुक्स हैं जो मेरी हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मैं इस बुक का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। जैसा मैंने आपको बताया, ये बुक एक्चुअली लिखी गई इंडिया में और ये पब्लिश हुई यूएसए में। और मुझे पता चला कि ये बुक इंडोनेशिया तक गई है। और ये मुझे तब पता चला जब मेरे पास एक मेल आई इंडोनेशिया से। वो फिजिक्स का रिसर्चर था और बेसिकली ये बुक बायोसेंसिंग पर है, बायोफिजिकल फिनोमेना पर ये बुक है, सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस। तो मेरे पास मेल आया कि उसके पास ये बुक है, उसने ये बुक पढ़ी है और वो एक रिसर्च स्कॉलर है, और उसको इस बुक के थ्रू उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और उसके रिसर्च में हेल्प मिल रही है, जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो ये नोवा से पब्लिश बुक है और ये मैं कुछ खास बुक्स यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये स्प्रिंगर नीदरलैंड से पब्लिश है। और ये जो बुक आप देख रहे हैं ये मेरी रीसेंट बुक है, और ये वर्क मेरा IGNTU में ही था और ये कैम्ब्रिज यूके से पब्लिश हुई है। इसके बाद आप बुक चैप्टर्स देख सकते हैं, मैंने कुछ ही रखे हैं जस्ट फॉर विजुअल। ये बुक चैप्टर आपके रिव्यू आर्टिकल की भी तरीके से हो सकते हैं और आपके रिसर्च पेपर की भी तरीके से हो सकते हैं, और ये सॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड दोनों हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। और आप ये देख सकते हैं, ये एल्जेवियर का है और ये स्प्रिंगर का है। इसके बाद लास्ट कैटेगरी जो आती है पब्लिकेशंस की, वो होती है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। आप जानते हैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें पेपर्स को, जो प्रेजेंटेशंस होते हैं उनको कंपाइल किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में और या तो फिर फुल लेंथ पेपर के फॉर्म में। तो अगर आपने किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है जहां पर कि आपकी प्रेजेंटेशन को फुल लेंथ पेपर के फॉर्म में, प्रोसीडिंग्स के फॉर्म में पब्लिश किया जा रहा है, तो आप उसमें भी API स्कोर के लिए एंटाइटल्ड है, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू डू विद द API स्कोर, बिकॉज यू हैव टू either promote yourself or you have to get yourself selected to somewhere, so API does matter. So ये कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी उसमें। अच्छा, कई बार कॉन्फ्रेंसेस जो बहुत बड़े लेवल की होती हैं, उनके पब्लिकेशन, उनकी प्रोसीडिंग्स बहुत बड़े जर्नल्स में आती हैं जो इम्पैक्ट फैक्टर ओरिएंटेड होते हैं, और आप देख सकते हैं ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में ISSN नंबर भी होता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं प्लेगरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। UGC ने एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट की है प्लेगरिज्म को लेकर के। बेसिकली आप जानते हैं प्लेगरिज्म क्या होता है, बट बेसिकली ये वो होता है जिसमें कि आप किसी के वर्क को एंटायरिटी रिप्रोड्यूस करते हैं बिना उसे एक्नॉलेज किए। आपने किसी के वर्क को एज सच, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, लैटिन में कहते हैं एड वर्बेटिम, वर्ड बाय वर्ड आपने उस वर्क को रिप्रोड्यूस किया, लेकिन एज योर ओन आपने किसी को भी एक्नॉलेज नहीं किया, ओरिजिनल ऑथर को एक्नॉलेज नहीं किया। बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि जापान में एक माउंट फूजी है जो कि 1707 में कभी
इरप्ट किया था, बट अभी वो डॉर्मेंट हो गया। लेकिन डॉर्मेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो फिर इरप्ट नहीं करेगा। इसको आप रीफ्रेज करके लिख सकते हैं, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि अगर आप रीफ्रेज भी कर रहे हैं, फिर भी ये आपकी फाइंडिंग नहीं है। ये फाइंडिंग तो फिर भी किसी और की है, आपने बस शब्द बदल दिए हैं। बट जो बेसिक कंटेंट है, जो सब्सटेंस है, वो तो सेम है, वो तो ओरिजिनल ऑथर का है। तो अगर आप, एक तो आप पैराफ्रेजिंग तो आप जरूर करिए, रीफ्रेजिंग तो आपको करना ही करना है, लेकिन रीफ्रेजिंग के बाद भी आप हर हाल में उसे आप साइट करिए, आप उसे रेफर करिए, जो ओरिजिनल ऑथर है आप उसे रेफर करिए, आप बिल्कुल सेफ हैं। आप उसे, तो दो शर्तें हैं, एक तो आप इसे रीफ्रेज करिए और उसके बाद भी आप उसे रेफर करिए एज अ ओरिजिनल ऑथर्स वर्क एंड नॉट योर ओन वर्क। आप ह्यूमैनिटीज में बेसिकली लिखते हैं एज सजेस्टेड बाय एक्स और एज सजेस्टेड बाय वाई, या सिंपली आप जैसे साइंस में रेफरेंस देते हैं वैसे ही। साइंस में तो हम वैसे भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस में बेसिकली फैक्ट्स को आप रिफ्रेज नहीं कर सकते। फैक्ट will remain there, it will remain as such there, so आप उसे रिफ्रेज नहीं कर सकते, आपको साइट तो करना ही पड़ेगा। so ये अच्छा, यूजीसी की पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो चूंकि आप सभी सुपरवाइजर हैं इस वक्त, जरूर होंगे, सारे ही सुपरवाइजर्स होंगे जो अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप ये कह के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये तो मेरे स्टूडेंट ने किया है, मुझे नहीं पता है। आपकी भी सहभागिता, कॉम्प्लिसिटी आपकी उतनी ही मानी जाएगी जितनी कि आपके स्टूडेंट की है, और एक्शन दोनों पर लिया जाएगा, बिलीव मी। क्योंकि मैं आपको एक केस बताता हूं। चंडीगढ़ में इमटेक है, सीएसआईआर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। वहां पर एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर, उनके किसी स्टूडेंट ने, अब यूजली रिसर्च स्टूडेंट उतने ज्यादा वेल वर्स नहीं होते हैं, कॉपी पेस्ट किया होगा या कुछ वर्क को उसने मैनिपुलेट किया, डेटा मैनिपुलेशन था, और फिर उसके बाद वो डेटा पब्लिश भी हो गया फाइनली। फिर उस पे फिर जब वो वाइडर साइंटिफिक कम्युनिटी में गया तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, और फिर पता चला कि नहीं, ये तो गलत है, और फिर उसके बाद रिट्रैक्ट किया गया पेपर। अब फिर इंक्वायरी कमेटी बैठी तो फिर सुपरवाइजर ने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं साहब, ये तो मुझे पता ही नहीं उसने कैसे किया। ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई भी रिसर्च पेपर या कोई भी आर्टिकल बिना आपके आंख से गुजरे कैसे कहीं पर भी सबमिट हो सकता है? आपका नाम तो जा रहा है, और अगर आपके बिना परमिशन के भी सबमिट हुआ है तो आपका नाम जा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों आपकी बनती है। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। डिपेंडिंग कि आपका क्राइम कितना सीवियर है, आपका पनिशमेंट भी, लेवल ऑफ पनिशमेंट भी उतना ही होता है। अगर 50% से ज्यादा आप यूजीसी की गाइडलाइंस पढ़िए तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आपने देखा होगा पौंडीचेरी की वाइस चांसलर को अपने शी हैज टू मेक अ वेरी डिसऑनरेबल एग्जिट। तो इससे कोई नहीं बचा है, ये बेहद खतरनाक है। और अब तो यूजीसी पेपर्स में तो आप फिर भी कर सकते हैं, बट थीसिस में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी थीसिस सबमिट ही नहीं होगी, क्योंकि यूजीसी कहता है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा और उसमें आपको क्वांटिफाई करना होगा कि लेवल ऑफ और परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी कितनी है। तो बेसिकली यूजीसी ने कुछ सॉफ्टवेयर्स भी डिफाइन किए हैं, आइथेंटिकेट और कुंड और ये सारे कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इनसे तो आप बच भी नहीं सकते, और आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए बचने की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको व्हेन यू एक्सपेक्ट इट लीस्ट टू हार्म यू, इट विल हार्म यू द मैक्स, राइट? सो इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो द गुड एथिकल प्रैक्टिसेस। और दिस वाज द लास्ट स्लाइड, and thanks for your very patient hearing, and grateful again to the organizers for bestowing me and letting me this opportunity to interact with such a wonderful audience. Thank you. Thanks a lot. I'm done. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. This is very nice. This is very nice lecture, sir. Very nice. Thank you. Hello. Hello. Yes. Yeah, please. Please Hello. maintain. Sir, actually, It was really very nice lecture, sir. I have a question. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, madam. I'm grateful. Sir, can I ask a question? Yeah, please go ahead. Please go ahead. Actually, you have discussed about Mendeley. So Mendeley, I have tried many times. I have
I face difficulty all the time while entering references via Word, MS Word. So could you explain how to do it via MS Word? Yes, I told you when I was discussing this. Hello. Yes, yes, hello. Yes, I told you this when I was discussing this, formatting style. This is purely a thing of workshop. Just by telling you, it doesn't really make sense. I can tell you the different step to rectify. But the thing is, it won't work unless there is some hands-on instruction and hands-on kind of training to let you know what are the issues and how to dispel. I would rather suggest EndNote is tried and tested. Instead of Mendeley, you can try EndNote. EndNote is usually free from glitches. I'm really sorry because I cannot be of much help to you at this time, because it really entails a lot of actual on-screen session in terms of workshop to show you how to actually go for that particular thing. I will rather, as a solution, I will rather suggest. Okay. Yeah, I will rather suggest to go for. एक क्वेश्चन मेरा भी है. Yeah. रणवीर सर. हाँ जी. रणवीर सर. Sir, another question. सोशल साइंसेस के लिए भी यही फॉर्मेट काम करेगा? सोशल साइंस में. सोशल साइंस के लिए भी यही फॉर्मेट काम करेगा? मुझे लगता है कि चूंकि इनका जो बेसिक वर्किंग मोड है वो ये है कि आप एक लाइब्रेरी ऑफ रेफरेंसेस बनाते हैं, और सोशल साइंसेस के जर्नल्स मैंने देखे नहीं है यूजली, बट मुझे लगता है कि उनमें भी यही होता होगा. आप मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट सारी चीजें करते होंगे, और जर्नल्स का अपना एक फॉर्मेट होता होगा या मैगजीन्स का अपना एक फॉर्मेट होता है. तो मुझे लगता है कि अगर वो लाइब्रेरी आपके पास रेफरेंसेस की है और वो जर्नल्स एंड नोट कवर करता है, देखिए इसलिए मैंने कहा कि इट इज like one shoe that fits all, like one shoe fit all policy. इसलिए मैंने आपको मेंडली, डोटेरो और एंडनोट के अलावा और भी सॉफ्टवेयर दिए जो कि साइंस में अगर काम कर रहे हैं तो हो सकता है आर्ट्स ना करते हो, बट हो सकता है वो आर्ट्स में और सॉफ्टवेयर काम करें. बट बेसिक मॉडल हर जगह यही है कि आपको एक रेफरेंस लाइब्रेरी तैयार करनी पड़ेगी, और उस रेफरेंस लाइब्रेरी और फिर आप उस जर्नल Mendeley works actually. Yeah, it does. सर 30% प्लेगरिज्म अलाउ है ना? हाँ जी. Sir, actually, हाँ जी. 30% प्लेगरिज्म इज अलाउड? No, I don't think so. क्योंकि आपका 10% अलाउड. आप यूजीसी की गाइडलाइन आप देखेंगे. Hello. Sir, my question is. Right. हाँ. Hello. नहीं इन मैं अभी उनके सवाल का जवाब. Elsevier, Web of Science. मैं एक मिनट, मैं अभी किसी कहना यार मुझे सवाल पूछा था, मैं प्लीज उनका जवाब दे दूं. देखिए आपने कहा कि प्लेगरिज्म कितना, मैंने आपको बताया 10% is allowed, right? 10% is the maximum limit. Though I'm not confident about the this threshold. UGC guidelines very clearly says this, but 30 certainly not acceptable, because when you go around 50 or up there, you are entitled for some very serious form of punishment. मैं तो ये कहता हूँ कि why 30% भी क्यों होना चाहिए? It should not. Rephrasing, right? आप उसे rephrase करिए, आप उसे just try to avoid when there is the thing is, see, जब हम किसी disease की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो हम जो नॉर्मल है वो 80/120 है, या जो नॉर्मल है 100 है फास्टिंग आपका शुगर. तो हम क्यों कह रहे हैं ऐसा कि 98 is permissible? Why should we go towards the higher limit? हम 100 से बहुत नीचे क्यों नहीं रह सकते हैं? और ये हमारे हाथ में है. ये हमारे हाथ में. प्लीज और एल्सेवियर के बारे में पूछ रहे थे. सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज. Sir, actually, my question is that you have discussed on Elsevier, Web of Science, Scopus, and PubMed. So I have been go through the Web of Science and Scopus, where I have found the journals related to social sciences, because I belong to social sciences. Okay, so when does Elsevier and PubMed have a list of journals of social sciences? I'm really not very sure if Elsevier publishes the humanities subject as well, but they do.
I'm pretty sure they do. And if they do, this is a very basic policy of journals to let you know on the very first page, that this particular journal is indexed in this, right? So you don't have to do any search or something. It is very clearly mentioned on the very first journal page of it. You just click onto the journal and you will get to know that this journal is indexed in Web of Science or something. And I can tell you, if it is indexed in PubMed, PubMed is basically for science, I guess. So I'm sure humanities may not find a place in PubMed, but certainly it might be there in it might be mentioned in the journal that it is where it is indexed, right? So this is the basic concept. As important as the as important as the impact factor, it is other things that Elsevier do it very explicitly, explicitly. Your voice is echoing and breaking somehow. Oh, I'm so sorry. So what I had said, so now am I audible? Am I audible now? Yeah, Yes, yeah. sir. Yes, sir. Okay, fine. So what I was telling you, see, PubMed, I guess, is reserved for science. But Yeah. these days I can tell you one more thing. I really find it very difficult because science and math, there is a time of integration. So even if you have some work, some sociological work, say if you are working on some social science problem, and I am working on some public health problem, right? So why can't we collaborate and publish it in some science journal? Because there can be a societal implications, there can be economic implication of a disease. That is just one way of saying it. Now coming to specifically to your question, I guess different journals and different streams have different abstracting databases. For example, even in science, if you go for life sciences, then there are genetic abstracts, there are some other abstracts. So there are specific abstracts as well. But what I'm saying, generally, what UGC recognizes and what generally is considered very good indexing, database if your journal is there. And well, I feel Web of Science and Scopus, because if you go through the care list, it is such an exhaustive list. I'm pretty sure that is not a journal that cannot, if it is worthy of its salt, it cannot find a place in in its database. I'm pretty sure whatever journal you are looking for or you have already published must have its place in at least Scopus and this Web of Science. I'm pretty sure you should go through that. Hello. UGC here. Sir, how best can we enhance our citations? Yeah, how best? What are the ways and means of enhancing Yeah. our citations? Can you Okay, provide? that's a very good question. That's a very good question. I can tell you. See, that is where I had shown you that journal finder thing. The issue is you can't really do much. The worst part is you can't really do much. All you can do is to do a good work, and thereafter you have to somehow get it published in a journal which has a very high citation rate. Believe me, I had shown you my review article. I had shown you my review article. That review article is in Sensors and Actuators. I had given you the example of that JBC. Why JBC, despite having a lower impact factor, is several notch above the several other journals of American Chemical Society. The reason is very similar. They are very high tier and very visible journals. So if you can somehow publish your finding in that journal like JBC, like Sensors and Actuators and all, you cannot imagine your citation will skyrocket like anything. I have maximum citation from JBC. I have maximum citation from the Sensors and Actuators, more than 300, 400 citation from the Sensors and Actuators and all this stuff. And I can tell you, proving my point, you can publish a same study in some journal with a high impact factor but less visibility or less site score, say some other journal. But if the same study, see, study is the same,
but it is the journal that can make a difference. So if you are publishing in a journal like PLOS Biology, or if it is like PNS, Proceeding National Academy of Sciences, these are some very, very good journals. Or most of the Elsevier journals have very nice visibility. This I can tell you for sure. Elsevier journals have a very nice visibility. So the Elsevier journals have a very nice visibility, and yes. So between a research article and a research communication and a review article, which one of these two will have maximum citations? Yes, of course, it is review article. See, it is this question is relative. I must tell you, question is very good, but it is relative, and you can feel what I am saying. See, you had made some landmark work, like benchmark discovery, not discovery, say some finding. Yes, some very nice finding, and you had published it. The thing is, if it is of that, but this kind of finding doesn't happen so often, right? Like discovery of penicillin or something like that. Unless the work is of that magnitude, I really don't know. I really don't think that a research paper or research communication can in any way have a citation more than review article. Review article is for this only because, see, the citation invariably objectively has very high for a review article, because what you do, you actually summarize work of several decades into that review article. So instead of looking for a reference about a particular work, we can simply go for a review article. A review article simply summarizes work of enormous magnitude. Like so many works are compiled together to make a review. So instead of looking for those work individually, you can find all those references in a review article under single head and at a single place. And that makes a lot of difference, and this is the reason why a review article has definitely tremendously high citation as compared to your research paper. There is no on this note, on this note, a slightly modification of my previous question. Now, between a review article which is published in a peered international journal and a textbook chapter which is also of the same caliber as the one which is published as a review article in a internationally peered journal, which one of these two will help us in gaining more citations? A textbook chapter and a review article, both of the same caliber. But again, I can tell you, like again, it will my weight invariably goes to the review article. Again, you see, say if you are from science and if you are discussing some some phenomena of molecular biology or some physiology or something like that. Say for example, the thing is, there are epochal kind of books, some very you can say a kind of Bible, that is Bible and Gita, that is available in physiology, in molecular biology. So I really don't find a reason why a person will go into your work, because there are books from stalwarts already available. If you talk about molecular biology or physiology or something like that, why they will go into looking into your book. Right. So this is the reason where that actually reduces your visibility. Right? Excuse me. To a greater extent, reduces your visibility. But review article is invariably when you do some article search in PubMed or anywhere else, your review article automatically is reflected if it matches with the keyword. So if you can feel what I am trying to convey you, it is invariably the review article. The reason is simple. A review article doesn't really have a hierarchical kind of a status where a Nobel laureate has written a review article. Of course, when a Nobel laureate will write a review article, then of course it will have more impact than your review article. But if review article has been written
And most often it doesn't happen. But if review article has been written on a scale, then of course you will have a more visibility. You will have more visibility. You will have more visibility as compared to the book chapter, because in case of books, there are already seminal books, seminal works that are already available with the reader. So they will hardly go for your book. So let us take the example of my book. I may presume that I had written a very good book, or it has gone down to Indonesia, and it has traveled down to Indonesia, and it was appreciated by a physics student. But still, I cannot really claim that my book will have more citation, and it is reflected in quantitative numbers also. You can see and just to prove my point, I can tell you I had written the same review about the same topic in sensors and actuators, and it got more than few hundred citation. And the same book, Surface Plasma on Resonance, published by Nova, that has gone down to Indonesia, and I don't know where else, has very limited citation, has a very, very limited citation. And you can feel what I'm saying. Book is hardly seen by people or researchers for their reference, but review articles, they come very handy. They are ready-made kind of thing. They come very handy in for your reference citation. So between impact factor and citations of a particular article in a journal, which one really is an indication of the credibility of the authors contributing to the same? Of course, citation. There is no second thought. Absolutely no second thought. You just believe. Why at all people will cite your work? Why at all will people cite your work? Unless it has some credibility. Why at all people will reproduce your work? Citation means what? They are citing your work because they are garnering kind of support for their work from your work. Got my point? So yes, actually, they are citing you for nothing else but to gain support for their own work, because you had a similar kind of finding. So they are getting, so they are strengthening their work from your reference. So certainly, impact factor stands nowhere when it comes to citation, because there you might have come across so many examples and so many cases where the reference work is where you had seen that paper published in a high impact factor journal is not having very good citation, but a paper published in a very good quality journal has a very high citation. So again, I told you, impact factor is very misleading. A good impact factor doesn't really entail a very high level of citation. Believe me, it is not. And now these days, there are a number of factors also. You have to subscribe those costly journals. If you have to buy your article if you are not in the if you have not subscribed that particular journal. So these are the issues. There are n number of issues that comes into the picture before deciding what kind of citation your paper has. But certainly good journals do a lot of good work. And of course, open access journal in this regard do a very nice job, because they are accessible and can be accessed by all. So in that way, open access journals really do a lot of favor. But to answer your question in one sentence, yes, it is citation. Impact factor stands nowhere, because it is a testimony that the number of citation is a testimony that your work is, being solicited, a sort of solicited to strengthen a particular cause by others. You got my point, what I'm trying to convey? Yes, sir. So between authenticate and Turnitin plagiarism software, which is the most preferred software, which is usually adopted by these journals to look for plagiarism in the submitted. It is authenticate explicitly and invariably it is authenticate. But the level of the stringency level, when you do compare authenticate and plagiarism, Turnitin, I think it is Turnitin which is more on the stringent side than authenticate, isn't it, sir? But still, but still, you see,
but still you see a lot of good journals, a lot of good publishers. They all go for it. Maybe I had used this Authenticate and this Orkun because of the university thing. So I really do not have much idea. But yes, I can tell you. There is a difference of at least 5% in terms of the which is huge. Yes. Which is huge. But if I remember, I had tested all these softwares, say Orkun, Authenticate, and all those things when my student was about to submit his thesis, right? And I can tell you, I was more impressed with this Authenticate. These are all online available. So I can tell you, I was more impressed with Authenticate. This is my personal experience. Now I really don't recall why I was more impressed with this one. I don't recall it right now, but yes, it was all because of this. Yes, it was Authenticate, and my all books and all journals, papers, they all undergo this kind of like plagiarism check through this only. So when we submit an article to a journal and we do a check before submitting using any of these plagiarism softwares, my question is, once we... Yes, please. हेलो हाँ, yes. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर समय की बाध्यता थोड़ी हम लोगों को मजबूर कर रही है। ये डिस्कशन आगे और भी चलेगा। निशब्द हूँ, शब्द नहीं है बोलने के लिए कि शायद अगर शब्दों में धन्यवाद दें प्रोफेसर सर, रणवीर सर आपका, तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। जितनी मेहनत की आपने इस लेक्चर को तैयार करने के लिए, और हमारे प्रतिभागियों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया डिस्कशन वाले सेशन पे, वो आपकी सफलता का गुणगान कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इतना मतलब आगाज ही जब ऐसा है तो पता नहीं अंजाम क्या होगा। आपका ये पहला लेक्चर था और प्रतिभागी हमारे करीब 174 लोग जुड़े थे और लगातार सुनते रहे। 156-57 लोग अभी भी ऑनलाइन हैं। ये इसलिए कि आपने बांधे रखा। आपकी भाषा शैली का मैं हमेशा से कायल रहा हूँ। मुझे क्या कहें कि सौभाग्य मिला है आपके साथ रहने का, आपके साथ काम करने का। हम लोग कई सालों तक यहाँ साथ में रहे। शुरू में मैं बताना थोड़ा सा भूल गया कि प्रोफेसर साहब हमारे साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में रहे हैं। मतलब हम लोग उनके साथ रहे हैं, एक साथ हम लोग का काफी लंबा समय बीता है, जिसके चलते हम लोग आपकी इस विशेष प्रतिभा से सब पूरी तरीके से परिचित हैं। और ये काफी कठिन कार्य होता है कि किसी से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब महारथी जैसा वक्तव्य को सुनना। हम सर इसके लिए आपके बहुत बड़े आभारी हैं, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट ने जब कहा कि सर हिंदी में बोलिए, तो मुझे लगा कि पता नहीं रणवीर सर, क्योंकि आपकी जो दक्षता है अपने विषय को स्पष्ट करने में, स्पष्टीकरण देने में, वो इंग्लिश में ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से आपने हिंदी माध्यम के भी विद्यार्थियों को संतुष्ट किया है, इतने सारे कमेंट हमारे पास आए हैं जो हमारी सफलता को दर्शा रहे हैं आपके वक्तव्य के माध्यम से। तो सर आपसे हमारा फिर निवेदन रहेगा, आग्रह, गुजारिश, सारी चीजें कि इसी तरह जिस प्रकार से अपना स्नेह और प्यार हमारे प्रति आपने प्रदर्शित किया है, कि इतने एक तरीके से कहें कि आपके व्यस्ततम समय में से भी आपने हमारे लिए समय निकाला, वो भी हमारे कहने पे। ये नहीं आपने कहा कि हम अपना समय बताएंगे, एक बार में आप तैयार हुए, क्योंकि आपने ये कहा था कि अरे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की बात है तो यूनिवर्सिटी फर्स्ट, उसके बाद जो होगा जो भी शेड्यूल मैं अपना देखूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, सारे के सारे प्रतिभागियों की तरफ से। और फिर से हम लोग आपको सुनेंगे, मौका मिलेगा अवश्य सुनेंगे। Excuse me, sir. If you permit me, can I ask one more question, please? आप ऐसा देखिए, अब ऐसा करें, समय की बाध्यता मैंने आपसे कहा था, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक सुन लीजिए मेरी बात, आप पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालें। हमारे एक्सपर्ट क्या करेंगे, चैट बॉक्स से क्वेश्चन लेके एक एक करके जवाब देंगे, तो ये ज्यादा सुविधाजनक होगा। अगर सभी लोग अपना माइक ऑन करके बोल देंगे तो कल्पना करें कि हम किसे रोकेंगे। हमने कई सेशन के बीच, जब क्वेश्चन सेशन चल रहा था, कई लोगों को म्यूट भी किया, लेकिन तत्काल उन्होंने अनम्यूट करके अपनी बात बोलनी शुरू कर दी। देखिए, ये ऑनलाइन इंटरेक्शन की कुछ बाध्यताएं तो रहती हैं,
अगर हम यूजीसी की मानते हैं तो 60 से ज्यादा एक क्लास में विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। हमारे पास संख्या 3 गुनी है, तो मान के चलना पड़ेगा कि हमारे कुछ लिमिटेशन है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगले सेशन में जब भी टीचर आए तो आप लोग उसको अपने चैट बॉक्स में दे दें, और हम गुजारिश करेंगे टीचर से कि आप देखें, क्योंकि एक ही सवाल को अगर 4 लोग पूछते हैं और चारों के अगर जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे, तो आप कल्पना करें जैसे रणवीर सर हैं, खैर उनकी ऊर्जा को आप लोगों ने देखा कि कहीं भी एकदम निर्बाध गति से उन्होंने बोला, कहीं भी चेहरे पे थकान नहीं, कुछ नहीं, और ये हमेशा से उनकी खासियत रही है। लेकिन अगर कल्पना करें कि मान लीजिए कि कोई ऐसे हमारे एक्सपर्ट हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो, और वो अगर 1-1.25 घंटा कंटिन्यू बोले, उसके बाद फिर इस तरह के डिस्कशन में भी अगर उनको उतना ही एक सवाल का अगर 4 बार उत्तर देना पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि अपने जो भी सवाल हैं आप उसे चैट में डाल दीजिए, ताकि एक्सपर्ट अपने सुविधानुसार सवाल देखें। हाँ, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका सवाल नहीं पिक किया गया, तो आप दोबारा लिख सकते हैं उसको, या फिर एक बार परमिशन के लिए हम लोग को लिखें कि सर प्लीज ऐसा सवाल है जिसको नहीं लिखा जा रहा है, बोल के बताना जरूरी है, तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। और हाँ, कल के लिए एक बात कि कल जो सेशन होगा 2 से 3 वाला, वो संभवतः इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा के लिए रखा गया है कि किस प्रकार से हम आने वाले जो 12-13 दिन होंगे उनको और अच्छा और इंटरैक्टिव और ज्ञानवर्धक बनाएंगे। तो इतना ही कहने के साथ मैं फिर से एक बार प्रोफेसर रणवीर सिंह सर का, आप सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया। फिर अपनी मुलाकात कल होगी। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र जी। सर नमस्कार। थैंक यू देवेंद्र जी। Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dhanvendra sir. Thank you. It was very, very nice.